The question is Rudolf and the ball game. In the question, you are given with in players standing in a circular order, and there is a ball throwing game, and you can throw the ball in any direction, like the clockwise or the counterclockwise. And if you're throwing a ball from the counterclockwise direction, let's say there are 7 players, and you're standing at 2, so and you want to throw the ball from 2 to 5. So if it is a clockwise and 2 to 5, the distance would be 3, like 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. But if it is anti-clockwise direction, then the distance from 2 to 5 would be 2 to 1, 1 to 7, 7 to 6, and 6 to 5. So this would be the direction. So the distance would be 4. And initially the ball is with the player X, and X is given to you. And on the ith move, they move the person with the ball, throws it at a distance. Let's say the person who is holding the ball, it throws the ball to a certain distance. That could be a clockwise or counterclockwise. For example, if there are 7 players, second player after receiving the ball throws it to a distance 5, then the ball will caught by either player 7 or it would be a fourth player. Like it could be any direction. So for some moves, you are given with a direction that is the clockwise or anti-clockwise. But for some moves, you are not given with any direction. So it could be anything, clockwise or anti-clockwise. So let me make it more clear. So question is basically N R local. N is the total number of players, M is the total number of moves, and R is the X. It will be X. So initially जो player के पास ball है, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा जो inputs हो गए, that is 2 and question mark. Question mark means it could be any direction, clockwise or anti-clockwise. And if it is like 0, then it would be only clockwise. But if it is 1, then it would be anti-clockwise. ये डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस से बॉल थ्रो हो रहा है जो प्लेयर के पास अभी बॉल है, और ये कौन से डायरेक्शन में थ्रो हो रहा है. क्वेश्चन मार्क तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. बट 0 है तो क्लॉकवाइज ही होगा, 1 है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. एंड कंस्ट्रेंट्स आर सो लेस. इनका जो कंस्ट्रेंट्स है दैट इज 10 to the power 3. एम का जो कंस्ट्रेंट्स है दैट इज ऑल्सो 10 to the power 3. सो तुम एम इनटू इनका अप्रोच फॉर श्योर सोच ही सकते हो, दैट कुड बी अप टू 10 to the power 6. सो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन. बट अब कैसे करेंगे, तो लेट्स से अभी मेरे पास जो इनिशियली जो प्लेयर्स है, मतलब अभी जो करेंटली कौन से प्लेयर के पास बॉल है, दैट इज एक्स. अब जो मूव होगा, लेट्स से दैट इज 2 एंड इट्स अ क्वेश्चन मार्क. एक्स, तो ये सेट बढ़ के क्या हो जाएगा, या तो एक्स प्लस 2 हो गया. ये भी करना है कि एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन एन. तो हम लोगों को क्या करना है, तो एक्स प्लस 2 मॉड्यूलो एन करना है. बट इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू एन, सो डायरेक्टली डू एक्स प्लस 2. बट ये मॉड्यूलो क्यों कर रहे हैं, लेट्स से अभी हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 पे हैं एंड द डिस्टेंस इज 2. सो 8 से 2 करेंगे तो क्या हो रहा है, 10 हो जा रहा है. तो 10 को मॉड्यूलो अगर 8 करें हम तो कितना होता है, 2. या आई गॉट माई 2. तो इसीलिए, बट वॉट इफ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, तो मॉड्यूलो नहीं करना है. बिकॉज लेट्स से इफ हम 5 पे हैं एंड द डिस्टेंस इज 3, तो ये 8 है. तो अगर 8 मॉड्यूलो 8 कर देंगे तो दैट विल बी 0 ओनली. सो इसलिए इफ द करेंट प्लेयर प्लस द डिस्टेंस, इफ इट इज लेस देन, if it is greater than n, then only do the modulo. If we are throwing in a clockwise direction, क्योंकि तो clockwise ही है. What if हम anti clockwise में फेंक रहे हैं, तो let's say 1 2 3 4 5 6 7 8. अब मेरे को एंटी क्लॉकवाइज में फेंकना है, तो 8 से मेरे को फेंकना है. सो x माइनस डी, इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हम लोगों को कुछ करना है. लेट्स से 8 से हम फेंक रहे हैं, सो 8 से आई वांट द डिस्टेंस 8 ओनली. सो 8 से अगर हम फेंके तो नहीं, लेट्स से हम 6 से फेंक रहे हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ थ्रोइंग इज 6. तो 6 माइनस 6 इज 0 एंड 0 इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. तो हम लोग मतलब कौन से बॉल में जाएंगे, 1 में यहाँ जाएंगे, 2 में यहाँ, 3 में यहाँ, 4 में यहाँ, 5 में यहाँ, 6 में यहाँ. तो क्या हम देख रहे हैं कि दैट इज 0 प्लस n नहीं हो रहा है. तो x माइनस डी का जो भी वैल्यू, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 0, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो कुछ करना ही नहीं. लाइक 6 से अगर मेरे को 2 डिस्टेंस पे जाना है, तो 6 माइनस 2 इज बेसिकली 4. तो 4 इज प्रेजेंट इन सर्कल. तो लेस देन इक्वल टू 0 के केस में क्या करना है, तो देखो जब डिस्टेंस 0 था तो 0 प्लस n वॉज सूटेबल.
बट वॉट इफ लाइक 6 से अभी मेरे को 7 डिस्टेंस पे जाना है, तो 7 डिस्टेंस पे जाना है, इट मीन्स जो फर्स्ट डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस में हम लोग किस में मूव करेंगे, फ्रॉम 6 विल बी मूव टू 5 ओनली। फिर नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे 4 पे, 3 4 5 6 7। सो हम लोग 6 में 8 में जा रहे थे एंड वी वांट टू कवर द डिस्टेंस 7। तो 6 से अगर मेरे को 7 डिस्टेंस पे जाना है, सो द टारगेट इज आर 7 ओनली। सो हम लोगों का जो 6 माइनस 7 होगा दैट इज -1। -1 प्लस n करते हैं एंड द वैल्यू फॉर n इज 8 ओनली। वो 0 के केस में भी सेटिस्फाई कर रहा था ना, फॉर -1 के केस में भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 7। तो यही करना है कि अगर मेरा x minus d, if you are throwing in an anti-clockwise direction, if it is less than equals to 0, then do a plus n simply। और तुम्हारा जो मूव है ना, the distance that would be less than n that is mentioned, like less than equals to n minus 1 ही होगा वो। मतलब अगर हम 6 से थ्रो कर रहे हैं तो वापस थ्रो के खुद के पास नहीं आएगा, वो किसी और के पास ही रहेगा, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू n minus 1, दैट इज मेंशन्ड फॉर श्योर। तो वो एक सर्कल ही मूव करेगा और यहाँ पे किसी के पास रह जाएगा, तो वही हम लोग को फाइंड करना था। एट सम पॉइंट अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो ये प्लस n वाला ट्रू है, फॉर एटलीस्ट 1 मूव के लिए तो ट्रू है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड वी नो दैट कि एक मूव से ज़्यादा होगा ही, लाइक हम लोग यहाँ पे हैं तो एट मैक्स मूव करके वो कंजिक्यूटिव के पास आ सकता है, खुद के पास भी नहीं आएगा वो। सो हम लोग जब कंफर्म है तो हम लोग तो चेक कर लिए कि लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 पे प्लस n वाला कंडीशन सूटेबल है, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो लेट्स से अभी हम लोग के पास x है, अभी डिस्टेंस 2 है एंड देयर इज क्वेश्चन में, तो हम लोग का पॉसिबल अभी पीपल कौन से होगा जिसके हाथ में बॉल हो सकता है, दैट इज x plus 2 and x minus 2। लेट्स सपोज दैट x minus 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x plus 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 8, बिकॉज क्वेश्चन मार गया तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। उसके बाद अब जो सेट होगा 1 आया, लेट्स से 0 है, तो 0 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो x plus 2 plus 0 हो जाएगा एंड नहीं, डिस्टेंस तो 1 है, x plus 2 plus 1 एंड x minus 2 plus 1, ये हम लोगों का न्यू सेट हो जाएगा। तो अभी करेंटली जिस भी प्लेयर के पास बॉल है, ट्रैवल्स फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर, लाइक ईच प्लेयर, तो अभी अगर ये 1 है इट मीन्स उन लोगों में 1 ऐड हो जाएगा। लेट्स से प्लेयर अभी x है तो x plus 1 हो जाएगा एंड इसको न्यू सेट में डाल दो। उसके फिर जो भी प्लेयर के अभी हम लोग का न्यू सेट बन रहा है, तो अभी करेंट प्लेयर एंड द डायरेक्शन इज 0, इट मीन्स इट्स अ क्लॉकवाइज, तो अभी जो भी डिस्टेंस है x plus d कर दो, बट इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन x minus d करो, एंड इफ कुछ भी है लाइक क्वेश्चन मार्क देन x plus d एंड x minus d दोनों सेट के अंदर डाल दो, करेंट सेट के अंदर। तो ऐसे करके हम लोग जो प्रीवियस प्लेयर्स हैं उन सब के लिए न्यू प्लेयर्स निकालेंगे, न्यू प्लेयर्स उन सब की यूज़ के, उन सब का यूज़ करो एंड क्रिएट योर न्यू प्लेयर्स का सेट, एंड प्रीवियस में जस्ट असाइन योर न्यू प्लेयर्स, बिकॉज जो प्रीवियस प्लेयर्स है उन सब के हाथ में पॉसिबल है बॉल होना, एंड उसके बाद फिर मेरा कुछ डायरेक्शन है तो उन सब से वो डायरेक्शन के हेल्प से न्यू प्लेयर्स काउंट कर लेंगे। उसके बाद फिर न्यू प्लेयर्स का न्यू सेट बना देंगे एंड दिस वुड बी, और प्रीवियस में ये असाइन कर देंगे कि ये अब मेरे करंट प्लेयर्स है। So let me show the code and it will be more clear. You want to have diamonds first n and x in n is the total number of players, n is the number of moves and x is the current player who is holding the ball. तो x को just current में insert your x, so that is my current player। ये जो कर्व होगा ये हम लोग current player को स्टोर करेगा, that is a set। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग डिस्टेंस लिए as well as that character could be question mark 0 and 1। तो जब ये क्वेश्चन मार्क है देन व्हाट माय न्यू प्लेयर्स वुड बी, क्योंकि अभी जो करंट प्लेयर है अब उनके हैंड से जब बॉल थ्रो होगा तो अभी तो डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग, तो अभी हम लोग सारे करंट प्लेयर्स में मूव करें, लाइक फॉर ईच प्लेयर विल टेक दी व्हाट द न्यू प्लेयर वुड बी। तो अभी जो भी करंट प्लेयर है उसके लिए न्यू प्लेयर कौन होगा, तो इफ एलिमेंट प्लस डी लाइक द डिस्टेंस, दिस इज द करंट प्लेयर एलिमेंट प्लस डी, इफ इट इज ग्रेटर देन n, मतलब वो ग्रेटर देन n होना है तो हम लोग को मॉड्यूलो करना है, because we want the answer within n, like within n it could be equals to n also। so if it is greater than n then do a modulo operation। so मेरा new player ये होगा for this element as the current player, so element को let's say that is x1, for this x player the new player would be x plus d modulo n, but if element plus d if it is less than equals to n then just insert that only and इसका क्वेश्चन मार्क दो, तुम एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज क्लॉकवाइज जोन में मूव कर सकते हो। तो ये फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज इफ एलिमेंट माइनस डी इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0
then you have to plus in that I have explained before. तो ये प्लस इन कर देंगे हम लोग. बट इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, then just insert element minus b. So it would be a new player for this element as a player, like for this exit player. So if it is a 0 that the direction is clockwise, तो तुम तो बस प्लस में ही मूव कर सकते हो, तो you cannot move with the minus direction, तो प्लस d कर दो. And if it is less than equals to n, just insert is as it is. So उसके बाद फिर करंट में आगे मूव करे. इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे माइनस वाला करना है. इफ दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0 तो प्लस एन करके इंसर्ट करो, नहीं है तो नॉर्मल इंसर्ट करो. उसके बाद फिर जो करंट प्लेयर के लिए मेरे न्यू प्लेयर आए, तो अभी करंट प्लेयर को हम लोग रिमूव करिए जितने भी थे. तो अभी जो न्यू प्लेयर है दैट वुड बी माई करंट प्लेयर ओनली नाउ. तो करंट पे हम लोग जो न्यू प्लेयर है उसको इंसर्ट करिए. लेकिन अभी करंट प्लेयर की हेल्प से ही हम लोग न्यू प्लेयर निकालें, तो अब करंट प्लेयर का तो कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम लोग करंट में न्यू प्लेयर इंसर्ट कर लेंगे. एंड इसको एज अ करंट प्लेयर करके नेक्स्ट मूव के लिए जो भी न्यू प्लेयर्स निकालेंगे उसको निकालें. उसके एट द एंड जस्ट प्रिंट योर करंट से यहाँ पे दैट विल बी करंट. उसके बाद फिर करंट में जितने भी प्लेयर्स हैं जस्ट प्रिंट ऑल योर एलिमेंट्स. So that's it. You have to take the current and the new players. So current player की हेल्प से न्यू प्लेयर निकालो, फिर करंट प्लेयर में असाइन कर दो. जस्ट ऐसे करके एट द एंड जस्ट प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट यू कॉट एंड सारे एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर दो. तो सेट की हेल्प से डुप्लीकेट्स भी नहीं आएंगे हम लोगों के पास. सो दैट्स इट. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.